آپ باہر نکل کے جنتوں کو ڈھونڈتے ہو نا، وہ جنتیں نہیں ہیں، جنت اپنے گھر میں ہے۔ تو میری بہو نہیں چاہتی تھی میں گھر پہ رہوں، اس لیے میں بس اس کو میں پسند نہیں ہے۔ بچے میرے شوہر کے تھے، انہوں نے مکان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا، جدات کی وجہ سے سارا سامان، سارا میرا زیور، سارا کچھ سب کچھ اتری، سب کچھ اتری ہے۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ کیا تو میں بہت خوش ہوں، یہاں امی کا ماحول اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ سے کہ مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ پریشانی کس بات کی؟ پریشانی بس یاد تو آتا ہے نا کچھ، سب کچھ۔ یہاں میری بہن مجھے لے کر آئی تھی، میری بڑی بہن اور خالہ، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی بہت ضروری کام ہے، جو زیادہ دن ہم تمہیں یہاں نہیں رکھیں گے، تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو ہم تمہیں لینے آ جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے تم یہاں رہ لو۔ بس انہوں نے یہ کہا تھا، جاتے وقت انہوں نے آفس میں یہ کہا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں اس کے آئے؟ بعد نہ آج تک ان کا فون آیا اور نہ کبھی نہیں آیا۔ 4 سال گزر گئے، 4 ایک سال بار گزر بھی گئے، نہیں۔ کسی قسم کا کوئی فون نہیں، 4 سالوں میں نہ کوئی فون اور نہ کوئی میرے گھر سے آیا۔ میں واحد ہوں شاید اس ادارے میں کہ جو اس طرح کا میرا معاملہ ہے، ورنہ سب کے فون بھی آتے رہتے ہیں، ملنے کے لیے بھی لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن میرے گھر سے آپ انتظار کبھی کرتی ہیں؟ ہاں، اب تو میں نے انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ اب نہیں جانا چاہتی گھر؟ نہیں جانا، تو گھر تو ہر وقت جانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی وقت کوئی آیا اور مجھے لے جائے، کوئی بھی آ کے مجھے لے جائے، کسی بھی وقت، کسی بھی دن۔ گھر تو ہر حال میں جانا چاہتی ہوں، گھر تو ہر حال میں جانا چاہتی ہوں، چاہے کوئی بھی لے جائے، چاہے کوئی خاندان والا لے جائے، چاہے میری بہن کیوں لے یہاں جائے۔ پہ اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، گھر والی بات تو نہیں ہوتی نا۔ اپنوں کا ساتھ؟ ہاں، اپنا گھر، اپنے لوگ، اپنا خاندان، وہ چیز تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی نا۔ آپ کہیں بھی رہ لیں، سب سے اس کے زیادہ کیا علاوہ یاد آتا ہے آپ کو؟ بس اپنا گھر، اپنے لوگ، ہر وقت کوئی آتا ہے۔ دل نہیں لگتا؟ نہیں، دل بالکل بھی نہیں دل لگتا، 24 گھنٹے میں کسی ایک وقت بھی دل نہیں لگتا، بالکل بھی نہیں۔ 4 سال کیسے گزارے پھر یہاں پر؟ صبر اور شکر، صبر اور شکر، صبر اور شکر، کیا کریں، بس اسی انتظار میں رہتے ہیں، شاید آج کوئی آ جائے، شاید آج کوئی آ جائے، شاید آج کوئی آ جائے۔ اور یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ جو کوئی بھی آئے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کے جائے، ایسا نہ ہو کہ 1 ہفتے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے، جو کوئی بھی آئے مجھے ہمیشہ کے لیے لے کے جائے، ہمیشہ کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ فرزانہ ماں آپ سب کی ماں ہے، الحمدللہ۔ یہاں پہ اتنی ساری مائیں ہیں اور وہ سب آپ کو فرزانہ ماں کے نام سے بلاتے ہیں۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کو ان کی سگی اولادوں نے نہیں پوچھا، جن کو اپنوں نے نہیں پوچھا۔ اس معاشرے میں جہاں پہ سگا خون بھی سگے کو جو ہے وہ خیال نہیں کرتا، سگے کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہاں پر جب غیر کوئی اتنا زیادہ کسی کے لیے کرتا ہے نا تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کیسے سلسلہ شروع ہوا اور کیسے اتنا بڑا سلسلہ یہ آگے چلتا گیا کہ آج پتہ نہیں کتنی مائیں ہیں جو آپ کو ماں مانتی ہیں۔ یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا، کبھی بھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ میرے اللہ کا انعام ہے جو کہ ان ماؤں کی نیکیاں دیکھ کے اللہ پاک نے ہمیں چنا اور ہمیں تیار کیا، مجھے اور میرے بچوں کو تیار کیا، کیونکہ ان ماؤں نے اپنی زندگی میں بہت نیکیاں کی ہوگی۔ اگر نہ کی ہوتی تو آج یہ پردے میں نہ ہوتی، یہاں 4 دیواری میں سڑکوں پہ بھٹکتی ہوتی۔ لیکن الحمدللہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ میں اپنی جیسی عورت، جس طرح میں عورت ہوں تو میں اپنے جیسی عورتوں کی عزت لے کے تو میں سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ پہلی جو خاتون تھی وہ کیسے آپ تک پہنچی تھی اور کیسے آپ؟ وہ تو میرے نیبر میں تھی، فاطمہ میرے نیبر میں تھی اور لوارث تھی، اس کا کوئی نہیں تھا،
تو بس उसकी वो गिरी और फ्रैक्चर हो गया। फिर मैंने चूंकि अकेली थी तो मेरी तो नेचर ही ऐसी थी। नेचर जो होती है, मैं ये मानती हूँ कि इंसान अपनी माँ के पेट से लेके निकलता है, और ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि अल्लाह माँ के पेट से उसको अता कर देता है। तो जब मैंने देखा कि वो अकेली है और मैं नमाज पढ़ती हूँ तो वो उसके चीखने की आवाज़ आती है क्योंकि उसकी टांग फ्रैक्चर थी। तो फिर मैंने उसको अपने पास रखा, उसकी सर्जरी करवाई, तो फिर वो मेरे पास रहने लगी। उसको देख के 2-3 औरतें बिल्डिंग से आई कि आपने इनको रखा हुआ, पर आप बड़ा घर लो और हमें भी रख लो। क्योंकि मैं मांगती थी, या अल्लाह मुझे 4 दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो, बस मैंने तुम्हें राजी करना है। तो सो फिर उन औरतों के मुंह से निकला और अल्लाह ने मेरे जहन में डाला। मैंने अपने बेटों से मशवरा किया तो वो भी एग्री हो गए, क्योंकि ये होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ और एक कारवां बन गया, जिस तरह इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है और कराची में भी है, और इस्लामाबाद में भी मेरा एक घर है, लाहौर में मेरा एक घर है बिनते फातिमा का। इस्लामाबाद में भी बिनते फातिमा है, वहाँ भी माएँ रहती हैं, लाहौर में भी माएँ रहती हैं। तो इस तरह ये काफिला बन गया माओं का। जहाँ एक माँ की जिम्मेदारी लोगों से उठाई नहीं जाती, वहाँ इतनी सारी माओं की जिम्मेदारी कैसे उठाई? मैं उठाने वाली कोई नहीं हूँ, मेरी औकात ही नहीं है। ये अल्लाह ही सारे वसीले बनाता है। अल्लाह पाक ने चींटी का रिज़्क भी गार में पहुँचा देना, ये तो फिर इंसान है। फिर अल्लाह पाक ने माओं को अपने बराबर 70 माओं जैसा रुतबा अपने आप को दिया हुआ है, माँ का दिया हुआ है। तो अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह ही चला रहा है, और अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डालता है, वो लोग फिर रुजू करते हैं, फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये जो सिलसिला सारा नजर आ रहा है 2007 से लेके आज तक लोग जुड़ते जा रहे हैं और नेकियां कमाते जा रहे हैं। आप हर साल उम्रा करवाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और कैसे आया कि मैं इतनी बड़ी सादत जो है उम्रे की लोगों को दूं और उम्रे पे भेजूं, खुद भी साथ जाएं? तो ये कैसे आया? ये मेरे पास हलीमा थी, तो वो अंग्रेज से मुसलमान हुई थी, तो उसका शौक था कि मैं मुसलमान हो गई हूँ तो मुझे ना अल्लाह के घर जाना है। वो लावारिस थी, उसका कोई नहीं था दुनिया में, तो मैंने अल्लाह के घर जाना है। तो बस उसकी तैयारी की, तो मैंने बहुत बड़ा मिलाद करवाया उसकी खुशी में कि इसको खुशियाँ मिले ना। तो उस मिलाद में फिर कुछ औरतें मुझे कहने लगी जो बहुत पुरानी थी कि क्या कभी हमें भी आप लेके जाएंगी। तो बस मैंने अल्लाह के घर जाके दुआ की कि या अल्लाह पाक, अब आखिरत में बुढ़ापे में यही तो एक ख्वाहिश होती है इंसान की, और इनके पास तो खुशियाँ कोई नहीं है। अब ये अगर खुशी है तो या अल्लाह पाक तो इनको अपने घर का और अपने प्यारे सोने महबूब के घर का दीदार करवा दे। तो वो फिर ये काफिला तैयार हो गया, और अब माशाल्लाह 7वां काफिला हम लोग जनवरी 2025 को लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह इस दफ़ा तो मुझे लगता है कि 16-17 खवातीन होंगी। हाँ। अच्छा नानमा, हमने देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आपके पास काफ़ी सारी माएँ आती हैं, काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जिनकी 8 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं, 5 औलादें हैं, लेकिन फिर भी बेसहारा हो जाते हैं। आप क्या देखती हैं कि क्यों इतने ज़्यादा औलादों में माओं के लिए, वालिदैन के लिए बेरुखी क्यों हो रही है? हाँ, उनकी बात किस्मत ही है, और तो कुछ भी नहीं है। मेरे भी बेटे हैं, मेरे बच्चे भी हैं, आगे असद के बच्चे हैं, बाकी इस्लामाबाद में बेटा है उसके बच्चे हैं, लाहौर में बेटी है उसके बच्चे हैं, उनके पास भी माएँ हैं, बेड पेशेंट भी हैं, स्पेशल भी हैं, नॉर्मल भी हैं। हम लोग तो बिल्कुल नहीं घबराते ना, हम लोग अफसोस करते किसी बात का, लेकिन बदबख्ती है उन औलादों की, बदबख्ती है जो अपनी जन्नत को ठुकरा देते हैं। बेहिसाब बहाने उनके पास होते हैं, और अपनी जन्नत को जो कि अल्लाह पाक ने अपने बराबर रखा हुआ है इन माओं को, और उनको घर से निकाल देते हैं। बदबख्त है वो, बहाने तो बेहिसाब उनके पास होते हैं। अगर वो हम लोग नहीं लेंगे कि नहीं आप अपने ही पास रखो, अपने घर रखो, तो कहीं और छोड़ आएंगे वो। क्योंकि वो तो उन्होंने तो सोच ही लिया ना कि माँ को रखना ही नहीं है, हमारा सुकून बर्बाद करती है माँ या बाप भी। ऐसे इदारे भी हैं जहाँ मर्द भी हैं, तो उनको यही लगता है कि
ये हमारे घर का सुकून बर्बाद करने वाले हैं ये बुजुर्ग। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी नौजवान नस्ल जो कहीं ना कहीं अपने माँ बापों के साथ ज्यादती कर रहे हैं या माँ बाप के साथ रवैया सही नहीं रखे हुए, या ऐसे बुजुर्ग लोग जिनको कोई सहारा नहीं दे रहा, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं जो यूथ है, न्यू जनरेशन है, या वो माएँ जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, या वो माएँ जिस तरह कहते हैं कि क़यामत के असारों में एक असार ये भी होगा कि घर घर से दीन निकलेगा लेकिन उस पे अमल कम होगा। तो वो नज़र आ रहा है कि दर्स व तदरीस और ये मामला सारे बहुत आगे तक चले गए हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरफ, अपने घर घर जिसको जन्नत का दर्जा दिया हुआ है, उस पर ध्यान कम है। तो पहला तो यही है कि अपने घर की चारदीवारी को देखो, अपने बच्चों की तरबियत को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, अपने शोहर को देखो, इर्द गिर्द वालों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो। दर्स यही है हमारे अल्लाह पाक का और हमारे प्यारे महबूब का भी यही फरमान है कि हकूकुल इबाद सबसे पहले है, सबसे पहले हकूकुल इबाद है। मैंने एक ही लफ्ज पकड़ा था कि मेरे से मेरी नमाज अच्छी नहीं पढ़ी जाती थी, नमाजें तो मैं बहुत पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता था कि ये अल्लाह को पसंद नहीं होगी। मैं यही कहती थी कि या अल्लाह हकूकुल इबाद दे दे मुझे, या अल्लाह कोई ऐसा कारनामा कर दे कि मैं रोड पे जाती हूँ और मैं चलते चलते मुझे कुछ नजर आ गया कि जो मुझे लगे कि ये मेरी नेकी है। मैं यही सोचा करती थी कि या अल्लाह पाक हकूकुल इबाद दे दे, क्योंकि तुझे हकूकुल इबाद बहुत पसंद है। तो बस हकूकुल इबाद यही है कि आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने सास ससुर को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी नानी दादी को टाइम दो, उनका ख्याल करो, उनकी रोटी का ख्याल करो, उनके खाने का करो, उनको टाइम दो। मेरा यही पैगाम है और कुछ भी नहीं है। इन माँओं को देख कर आज भी एहसास होता है कि इनकी आंखों में आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है, कहीं ना कहीं इंतज़ार बाकी है, और आज भी वो इस उम्मीद में, इंतज़ार में है कि शायद कोई उनका अपना लौट कर आए और उनको वक्त दे। लेकिन वो बदनसीब हैं जो अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी में अपनी जन्नत को खो बैठे हैं। इस वक्त जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी साहिब हैसियत लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे दिली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं, या जो चाहते हैं कि वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएं, तो ये बेहतरीन मौका है। ऐसी माँओं के लिए आप लोग दिल खोल के करें ताकि आपको भी सुकून की नींद आए, क्योंकि इस तरह की मदद करके ना ज़िंदगी में आपकी कोई भी परेशानी होती है ना, वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। तो अभी सब माओं ने उम्रे पे जाना है, तो आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट करनी है बिनते फातिमा फाउंडेशन को। अगर किसी के उम्रे में जाने में 1 रुपया आपका अगर शामिल हो गया ना, तो आप लोग अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाएंगे।